we will understand nucleus. Now, to understand nucleus, we should understand what the nucleus protects. If this is the cell and this is the nucleus of the cell, okay, the nucleus protects DNA. Now, DNA inside the nucleus of a cell looks like this thread-like structure, which is known as chromatin thread. Chromatin thread. Sir, why the name chromatin thread? The name chromatin thread is given because it took color very easily. Chroma, color. Okay. The meaning of chrome is color. Chroma. Okay. Color. Chromatin. Okay. So chromatin thread, when we stain it to see it under microscope, okay, the chromatin thread takes up color very easily. So that's why there is a reason why it takes up color or stain very easily to be watched under the microscope. We'll learn about it. I have taught you about microscope, right? So anyway, we'll learn about it. But first we should understand that this is actually chromatin thread is nothing but is actually supercoiled DNA. It is actually supercoiled DNA. So what is supercoiled DNA? Why are you saying supercoiled and not coiled? The DNA, everyone in class 9, class 10 knows that DNA looks like this. This is the structure of DNA. It is above the books, you know, book का जो watermark होता है book के cover का, है ना, उसमें भी रहता है DNA का structure, कुछ ऐसा है और इसके अंदर कुछ ऐसे structures दिखते हैं कि ऐसे लगा हुआ है, 2 strands ligated है, तो ये DNA है. तुम लोगों को मैंने बताया होगा कि DNA के अंदर segments of DNA, parts of DNA, in this segments of DNA are known as genes. They can be segments of DNA which may not be gene, but there will be segments in DNA which are genes. Some segments might be there which are not genes. Suppose, for example, this is a gene, gene 1, this is a gene, gene 2, this is another gene, gene 3, but this portion is not a gene. That can happen. That stays in the DNA. Now, the fact is that who will call a gene, which sequence will be called a gene, which sequence will not be called a gene? The answer is, suppose if I draw the DNA straight, this is the double helical structure of DNA. If I draw DNA like this is the double helical structure of DNA, contains 2 strands of DNA. One strand running from 5' to 3' end, and another strand which is like this and drawing like this. Okay, which should be, you know, like this actually. So another strand which runs from actually 3' to 5', means 5' to 3', 3' to 5'. Sir, what are these primes? You will understand this in higher class, but I am saying this to that you should understand that the strands are opposite in direction. That's why we say them anti-parallel strand. But also you should know that they are not only anti-parallel strands, they are complementary strands also. DNA are actually made up of nucleotides. It is a polymer of nucleotides. Nucleotides are 5. Adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. What are the names did I call? Adenine. Say with me. Adenine. G, guanine. G, guanine. C, cytosine. T, thymine. U, uracil. Go again. Adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. Still I am writing it for your convenience. It's adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. This is found in RNA. This is not found in DNA. Uracil is found in RNA. So we call it ATGC. So this AGCT or ATGC. You see, this ATGC lies in the strands like this. Suppose it can be an A, it can be an T, it can be a G, G, G or C, C, T, A, T. Whatever it is, it's a long sequence. But remember my friend, A will always be double bonded to T and G will always be triple bonded to C. So A will be bonded to T, T will be bonded to A,
G will be triple bonded to C, G will be triple bonded to C, G will be triple bonded to C, C will be triple bonded to G, C will be triple bonded to G, T will be double bonded to A will be double bonded to T, T will be double bonded to A. That means if we know the sequence of one strand, we can very easily predict the sequence of another strand. Is this clear to you? If we know the sequence of one strand, we can very easily predict the sequence of another strand, and that is why these two strands are called complementary strands. So the two strands of DNA which forms the double helix are complementary strands, and they are also antiparallel strands, and these sequences are part of this, these sequences are actually acting as codes for what? I said that what are these genes? You should understand that genes are actually the collection of these sequences in both the strands, ATGC, TTGC, whatever it is. And not only this many, but millions and millions of nitrogenous bases. These bases, nucleotides are there. Are you getting my point? Now the fact is this, that they line up like this and they act as codes. Like for example, computer में 010010 लिखने से it means something. In the same way 101010 लिखने से it means something. In the same way it also means something. Means what, sir? Means something we understand, but means what? It means that what should be the specific sequence of the protein that would be yielded from this gene will be made by the cell. Here where comes the concept of central dogma of molecular biology. Now seeing this video, other teachers will curse me that आप बच्चों को न्यूक्लियस पढ़ाने जा रहे थे, you have started talking about central dogma of molecular biology, but trust me, if you understand this, understanding the function, what is happening inside the cell will become easier. That is why I am saying it. And it will also act as an aid in the higher classes. In the higher classes, you will feel like biology is cool. You getting my point? So, a central dogma of molecular biology states that if there is DNA, the DNA gets converted into messenger RNA, and the messenger RNA gets converted into protein. These proteins are very important for the proteins produced from these genes are very important for our development of our characteristics, development of our characteristics. So how? In the cells, the proteins does a lot of kind of work. It helps in doing lot of kind of chemical reactions. It helps to decide whether a particular chemical reaction will happen or not. It helps to fasten up the chemical reaction. Fasten up means speed up the chemical reaction. Also, proteins get embedded in the cell membrane. Did you learn that when you learn the structure of the cell membrane? Those proteins allows the passage of many molecules or may not allow the passage of many molecules. So the structures of these proteins are very important. The specific structures of these proteins are very important, which develops our character. Too much deposition of melanin protein makes a person black. Lalu. Yes or no? But less deposition of melanin protein, he is thinking, arey mera melanin. Okay. So less deposition of, don't talk please. Less deposition of melanin protein makes a person fair. Not me, you. Okay. Shalini, no melanin protein. And you? People will say this teacher is racist, man. I'm just giving examples. So melanin protein देख तो क्या डिटरमाइन कर रहा है? कैरेक्टर. क्या कैरेक्टर की किसका स्किन कलर कैसा हो? उसी तरह मैं जो कैरेक्टर से बना हुआ हूं, मेरा ईयर डॉग्स अटैच है कि नहीं, मेरा टंग रोल होता है कि नहीं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा हाइट क्या है, मैं कितना हैंडसम हूं. हंस रहे हो नहीं हूं क्या? अरे ये मेरा कैरेक्टर है. बहुत सारे कैरेक्टर मिलकर मैं हैंडसम बना हूं. राइट और रॉन्ग? तो मैं कितना हैंडसम हूं, ये मेरा कैरेक्टर है. लेकिन ये कहां से आ रहा है? ये मेरे डीएनए से आ रहा है. सर इसका मतलब आपका बाप भी हैंडसम है. जरूर ही इज हैंडसम था. नहीं अभी भी बुढ़ा है, अभी भी हैंडसम. ठीक है. तो या नॉट ओनली दैट, आई एम जस्ट जोकिंग.
But these are characteristics we talk about. This comes from the gene. Not only in human beings, beta. In snakes, in lizards. Like for example, rattlesnake. There's a rattlesnake has a junjuni at its ledge. I mean, at its tail, right or wrong. So it's its characteristics. It's in its DNA. It's because of the production of specific kinds of proteins which makes them show not only one protein, maybe many proteins. Maybe it may be the work of many proteins, but which makes them show that character. Right or wrong. We see that black mamba snake का venom बहुत ज़्यादा घातक होता है. It is because of the kind of toxin or proteinaceous toxin it is releasing. It's in its DNA. तुम्हारे DNA में वो जीन है? नहीं है. ये तो भी काट देता. शौकत को गुस्सा आता दस देता है. तेरे DNA में वो कैरेक्टर नहीं है. Right or wrong? वो snake में ही है. सिर्फ स्नेक में क्यों? अलग ऑर्गेनिज्म स्नेक क्यों सोच रहा हूँ? लायन, स्कॉर्पियन, frogs, whatever it is huge. Even in bacteria, my friend. Even in viruses. वायरस भी तो डीएनए कैरी करता है ना. So the fact is this, that the DNA inside, even in a bacterial cell or inside in a human body, is responsible for producing specific types of proteins inside the cell in large amount, together many cells, or in one cell, codes for our character. But how these proteins will be, in what amount these proteins will be produced, will make our character develop or make any living organism's character develop. For example, मैं बोल रहा था कि ये यूनिसेलुलर के लिए भी ट्रूथ है. कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शियस होता है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शियस नहीं होता है. कोई बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, कोई बैक्टीरिया नहीं सकता है. राइट और रॉन्ग? सो दैट इज डिफरेंस इन इट्स प्रोटीन. क्या प्रोटीन वो प्रोड्यूस कर सकता है. सो दैट मीन्स ये प्रोटीन का जो बनना है, इस प्रोटीन को जो बनना है, उसको कैरेक्टर को कोड करने के लिए, या फिर नॉट ओनली कैरेक्टर को कोड करने के लिए, कैरेक्टर कोड कैसे होता है? ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो बनता है और कुछ काम करता है, कुछ सिग्नल करता है, या फिर इंटर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, या फिर एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शन करवाता है. एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स. सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से हम लोग जिंदा है, वो भी वो प्रोटीन्स की वजह से हो रही है. वो प्रोटीन्स उस रिएक्शंस को पॉसिबल करवा रही है. अगर वही प्रोटीन्स, वही एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो तुम्हारा कैरेक्टर नहीं दिखेगा. सुन बेटा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा है या फिर ऐसा है, ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रोटीन का जो इनिशियल अमाइनो एसिड चेन बना है ना, पेप्टाइड चेन, एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड, चार, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है. बहुत सारे क्या बन के प्रोटीन मिलते बनता है? अमाइनो एसिड. ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एक तरीके का रहेगा तो एक तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, दूसरा तरीके का रहेगा तो दूसरा तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा. आया समझ में? मतलब इस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मेरी बात सुन. इस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, या ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है. ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट. But the fact is this, that this amino acid का sequence is determined by these nucleotide का sequence. न्यूक्लियोटाइड जैसा बता देगा, जैसे कंप्यूटर जैसा बता देता है वैसा काम करता है कंप्यूटर का लैंग्वेज. न्यूक्लियोटाइड जैसा सीक्वेंस में रहेगा वैसा सीक्वेंस में प्रोटीन बनेगा. आया बात समझ में? इज दिस क्लियर टू यू? ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये डीएनए प्रोटीन में बदलता कैसे है? याद रखना, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जैसे कि यहां मैंने सिखाया है, एज अ क्रोमैटिन थ्रेड सुपरकॉइल्ड फॉर्म में रहता है. एंड उस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है. मैं सब बताऊंगा क्यों. और उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, मतलब डीएनए के सीक्वेंस को कॉपी करके. सर एक डीएनए एक प्रोटीन? नहीं, एक डीएनए में बहुत जीन्स रह सकता है. सर जीन्स क्या है बताओ? मतलब जीन्स वही है जिसमें से एक ठीक ठाक प्रोटीन निकल सकता है. अरे समझ में आ रहा है बात? और वो सीक्वेंस जिसमें से कोई प्रोटीन नहीं निकल सकता उसको जीन्स हम नहीं कह सकते. जीन इज द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए और पोर्शन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. इससे अगर एक प्रोटीन निकल रहा है तो ये जीन बन गया. ऐसे वेलनेस सीक्वेंस बहुत बैठे हैं जिससे कोई प्रोटीन निकलता ही नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिससे कोई प्रोटीन निकलता ही नहीं. ऐसे वेलनेस सीक्वेंसेस बहुत बैठे हैं, उसको मैं जीन्स नहीं बोलूंगा. डीएनए के कुछ सेगमेंट्स से जिसमें से प्रोटीन कोड हो सकता है उसी को मैं जीन्स कहूंगा. और डीएनए के अंदर जो जीन्स है उसमें से मैसेंजर आरएनए बनता है, उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है. ये न्यूक्लियस में होता है. ये जो होता है ये न्यूक्लियस में होता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन.
और ये जो प्रोसेस है ये होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म में, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में ही जरूरी है ना। इतना समझ में आया? अब आते हैं वापस कि शुरू कहां से किया था। अगर समझ में आया होगा तो मैं बोर्ड मिटा सकता हूं। और अच्छा मैं की করব अच्छा ओके केटे दो नहीं ठीक है, काटने का जरूरत नहीं है। जो नेचुरल क्लास में हो रहा है वही अपलोड करेंगे, मजा आएगा। 10 साल बाद बायोलॉजिस्ट बन जाओगे, फिर मेरे चैनल में वापस आओगे किसी दिन शादी ब्याह करके। हाँ, अरे मेरे को जो सर पढ़ाता था तो मस्त पढ़ाता था, बेटा अभी तो सर जिंदा नहीं है, इसी से पढ़ ले। मैं नहीं रहूंगा, मेरा चैनल रहेगा, मेरे वीडियोस रहेंगे, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। मेरे बच्चे को तो मैं ही पढ़ा दूंगा ऑफलाइन में बे। मेरे बच्चे को मैं बोलूंगा ले मैं एकदम खड़ा हूं, तू यूट्यूब देख, तो नहीं है। तुम्हारे बच्चों का तो काम आएंगे। सोचो तुम कितने फायदे में हो, खुद का फीस देके बच्चे का भी हो रहा है। ये फैलाओ मार्केट में कि सर के पास ट्यूशन पढ़ने से फायदा है तो, क्योंकि सर के स्टूडेंट्स को पता है कि सर का यूट्यूब चैनल कौन सा है और वो रहेगा, और पढ़ाई तो सेम रहेगी। और टच वुड नॉट टू मेंशन पढ़ाने का लेवल भी ठीक ठाक है कि नहीं? पढ़ाने का लेवल ठीक ठाक है, खाली ठीक ठाक है, अच्छा है तो काम आ जाएगा ना तुम्हारे बच्चों के। और इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा डीएनए किस में जाएगा? तुम्हारे बच्चे में ही ना जाएगा। एनीवे, तुम्हारे सेल में या किसी भी यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकारियोटिक मतलब जिसके पास क्या है? न्यूक्लियस है। मैंने प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक का डिफरेंस तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है? प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक का डिफरेंस मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि सर ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल। इज दिस क्लियर टू यू? इन यूकारियोटिक सेल क्या है कि न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमाटिन थ्रेड है, ये क्रोमाटिन थ्रेड एक्चुअली में है क्या? मैं दिखाता हूं। सोचिए डीएनए है, ठीक है? ये जो डीएनए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या होता है? कुछ हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, उसके ऊपर ऐसे कॉइल्ड हो जाता है। फिर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उसके ऊपर ऐसे कॉइल्ड हो जाता है। फिर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स है, उसके ऊपर ऐसे कॉइल्ड हो जाता है। इस कॉइलिंग के थोड़े से पोर्शन को मैग्नीफाई करेगा तो तेरे को दिखेगा कि डबल हेलिकल डीएनए इसके अंदर है। और ये जो क्रोमाटिन थ्रेड है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल भी बोलते हैं इसको। हिस्टोन प्रोटीन के नाम डीएनए कॉइल्ड है। और मैं बताता हूं तुम लोगों को कि अगर इस क्रोमाटिन थ्रेड के अंदर थोड़े से जगह को मैग्नीफाई करोगे, तुमको ये दिखने को मिलेगा, ये न्यूक्लियोसोम दिखने को मिलेगा। बहुत लंबा डीएनए ऐसे हिस्टोन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे कॉइल्ड है। बहुत सारे डीएनए जैसे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड है, और छोटा सा जो पोर्शन है वो खोलने से दिखेगा। उसके अंदर जो डीएनए जिसके अंदर जीन्स विंग्स है, सीक्वेंस विक्वेंस है, वो है। तो सोच के देख कितना हाई लेवल ऑफ सुपर कॉइलिंग है ये। कॉइलिंग, डीएनए खुद ही कॉइल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। वो प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड होता है ताकि और कंडेंस हो सके। और ये ऐसे बहुत न्यूक्लियोसोम्स ऐसे मिल के ऐसे क्रोमाटिन थ्रेड्स बनाते हैं, जो दूर से देखने में, तो ये भी दूर से देखने में एक थ्रेड जैसा दिखता है। और ऐसे लंबे लंबे थ्रेड्स मिलके क्रोमाटिन थ्रेड बनाते हैं। हाँ, क्रोमाटिन थ्रेड में कुछ पोर्शंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमाटिन, और कुछ पोर्शंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमाटिन। हेटेरोक्रोमाटिन वो पोर्शन है जहां पे लेवल ऑफ कॉइलिंग इज टू बिग मैन, टू हाई। मतलब उसको खोलना मतलब प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता। लेकिन यूक्रोमाटिन, उसमें भी कॉइलिंग है, उतना हाई कॉइलिंग नहीं है। मगर अगर तेरे को कुछ डीएनए की जरूरत है, डीएनए के अंदर से जीन की जरूरत है, तो सेल का एंजाइम होता है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए को खोल सकता है, खोल के वहां से जीन्स निकाल सकता है। तो तू खुद बता अभी, सेल सबसे ज्यादा जीन्स कहां पे रखेगा, यूक्रोमाटिन में या हेटेरोक्रोमाटिन में? हेटेरोक्रोमाटिन में जीन्स रखने से कभी वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा।
डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉइलिंग करके अंदर छुपा हुआ है। इसका कॉइलिंग, लेवल ऑफ कॉइलिंग थोड़ा कम है, इसको खोल के डीएनए को निकाला जा सकता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो जीन्स कहां पे रखेगा, हेटेरोक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन में? फिर बताओ। यूक्रोमेटिन में जीन्स ज्यादा रहते हैं। समझ में आया? सो व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन समझ में आया कि इट इज सुपरकॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तुम्हारे बुक में ये लैंग्वेज यूज करता है, सुपरकॉइल्ड ये बताता है, बोलता है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। आया समझ में बात? क्या तुम लोगों को यह पता है जब सेल डिवीजन होता है ये क्रोमेटिन भी कंडेंस होके ऐसा ऐसा नंबर्स में डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम। ह्यूमन में ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओ माय गॉड सर, मतलब ये क्रोमोसोम जो है और भी ज्यादा क्रोमेटिन और कॉइल अप हो जाता है। सर क्रोमेटिन खुद कम कॉइल अप था क्या? कितना पेचीदा इंसान है क्रोमेटिन, ठीक है। फिर उसके अंदर और कॉइलिंग होके ऐसा क्रोमोसोम बनता है सेल डिवीजन के वक्त। इसको कहते हैं क्रोमोसोम, इसको नहीं, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। आ रहा है बात समझ में? क्रोमोसोम में ऐसे बीच में रहता है सेंट्रोमेयर। क्या रहता है बीच में? सेंट्रोमेयर। और इसको कहते हैं क्रोमाटिड। क्या कहते हैं इसको? क्रोमाटिड। क्रोमाटिन से और हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग होके क्रोमाटिड, ठीक है। और जो जीन्स है वो यहां पे लगा हुआ होता है, यहां पे होता है, यहां पे होता है, यहां पे होता है सारा जीन्स। डीएनए इसके अंदर छुपा हुआ है। सो व्हाट इज, इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और क्रोमाटिन, इट इज डीएनए प्लस प्रोटीन। इसीलिए क्रोमाटिन, डीएनए प्लस प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर ही कॉइल्ड है ना। आ गया बात समझ में इतना? तो वीडियो के फर्स्ट पोर्शन में जो इंफॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को दिया और वीडियो के सेकंड पोर्शन में अभी जो इंफॉर्मेशन, दोनों इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में हो गया। अब दोनों को एक करेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। दोनों को एक कर दो अपने दिमाग में। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है ये कि मेरे अंदर मेरे जीन्स ऐसे क्रोमेटिन्स में छुपे हुए हैं और मेरे जीन्स से जब डीएनए एक्सप्रेस होना है तो थुरकी सा पोर्शन ऑफ डीएनए को खोला जाता है यूक्रोमेटिन से। तुर्की पोर्शन मतलब थोड़ा सा पोर्शन ऑफ डीएनए को खोला जाता है एंड वो डीएनए खुद वो इंफॉर्मेशन, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कोडेड है, ATGCCTTA व्हाटएवर इंफॉर्मेशन कोडेड है कि नहीं है? उस इंफॉर्मेशन से कैसा प्रोटीन निकलेगा वो कोडेड है, राइट और रॉन्ग? तो उसको खोल देता है, लेकिन वो तो खुद बाहर आके देख। प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए राइबोसोम्स। क्या चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए? राइबोसोम्स। अभी समझ में आएगा क्यों राइबोसोम्स चाहते हैं। देख राइबोसोम्स डीएनए खुद तो नहीं जाके बोलेगा ना, अरे राइबोसोम्स आओ भाई, आओ मेरे ये पोर्शन ले जाओ, क्योंकि तेरे बॉडी में हो या चाहे बैक्टीरियल सेल में हो, जिस सेल में तेरे बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स है, जिस सेल्स का जो फंक्शन है वो उस टाइप का प्रोटीन बनाएगा। बैक्टीरिया का जो जिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो उस टाइप का प्रोटीन बनाएगा, जिसके अंदर जैसा कैरेक्टर है वो उस टाइप ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? नहीं बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? एंड ये जो प्रोटीन बनेगा, दिस प्रोटीन दैट विल बी मेड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट प्रोटीन विल बी what to say is will be following the sequence of the gene, but the sequence of the gene is inside the DNA. और डीएनए तो इतना है भाई, क्रोमाटिन हमारे सेल में कंडेंस होके ऐसे 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। मैं बता रहा हूं तेरे को, एक क्रोमोसोम को मैं खोल दिया ना, डीएनए बना दिया ना, एक क्रोमोसोम को खोल के क्रोमाटिन से डीएनए बना दिया ना मैंने, मतलब इतना सारा क्रोमाटिन, पूरे न्यूक्लियस का क्रोमाटिन 46 ऐसा क्रोमोसोम बना सकता है हमारे सेल में। एक क्रोमोसोम को खोल दूं, डीएनए बना दूं, तो एक टेबल टेनिस का लेंथ कवर हो जाएगा। टेबल टेनिस को ये का टेबल टेनिस बोर्ड का, यहां सोच कितना हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग है। तेरे बॉडी के सारे सेल्स निकाल दूं, उसमें से सारे डीएनए निकाल के क्रोमाटिन को खोल दूं, क्रोमोसोम को खोल दूं और वो एंड टू एंड लगा दूं, तो आज से चांद तक जाएगा। इसे कहते हैं प्यार। लव यू फ्रॉम द मून टू द बैक, ऐसा कुछ बोलता है ना तू लोग, लव यू टू द मून एंड बैक, ये है प्यार। मैं कभी मुझे लगता है, कभी कभी देखता हूं तो लव यू क्या बोलते हैं, लव यू टू द मून एंड बैक। मैं लगता है मेरे को भाई कमेंट कर दूं, क्या रे तूने डीएनए खोला था क्या अपने बॉडी का सारा? गया कैसे डीएनए पकड़ कैसे? लेकिन यह सच बात है
कि तुम्हारे बॉडी के सारे सेल्स का डीएनए खोल दूं तो चला जाएगा, मून पार कर देगा, मून तक जाता है, ऐसे बोला जाता है। क्यों? इतना सोच, कितना फाइन लेवल ऑफ कॉइलिंग है। एक क्रोमोसोम 46 ऐसे टेबल टेनिस बोर्ड्स के, इमेजिन कर तो कहां से कहां तक होगा 46 टेबल टेनिस बोर्ड्स, राइट और रॉन्ग? उतना सारा डीएनए क्रोमाटिन बन के, क्रोमोसोम तो सेल डिवीजन के वक्त बनता है, ऐसे नॉर्मल टाइम में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब क्रोमाटिन बन के रहता है। आया इस बात समझ में? क्रोमाटिन ऐसे एक न्यूक्लियस में तेरे अंदर, तेरे सेल के अंदर है। कितना फाइन स्ट्रक्चर है डीएनए का, सोच रहा है तू? हाउ मच फाइन द फाइबर इज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट? यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? लेकिन इतना सारा डीएनए, इसके अंदर कितने सारे जीन्स होंगे, तेरे सारे कैरेक्टर्स कोडेड होंगे उस जीन्स में, राइट और रॉन्ग? अगर बैक्टीरिया का तो ऐसे नहीं रहता है, बैक्टीरिया का नेकेड रहता है ऐसे। ये सोच, बैक्टीरियल सेल है तो डीएनए ऐसे। एक्चुअली बैक्टीरिया का डीएनए याद रखना, बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है। क्या होता है बैक्टीरिया का डीएनए? सर्कुलर डीएनए फिर से खुद में सुपर कॉइल करके प्रोटीन के अंदर, यहां पे प्रोटीन रहता है, प्रोटीन के ऊपर फिर से सुपर कॉइल कर लेता है और सुपर कॉइल करके ऐसे रह जाता है। तो ये बैक्टीरियल डीएनए है और इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसको? आया बात समझ में? इज दिस क्लियर टू यू? इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोइड का बाद, ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम का बाद, ये हो गया तुम्हारा हेटेरोक्रोमाटिन का बाद, यूक्रोमाटिन का बाद, सारा हो गया। नाउ द फैक्ट इज दिस इज डीएनए, दिस डीएनए इज सर्कुलर। नाउ द फैक्ट इज दिस दैट इतना सारा डीएनए, इतना सारा जीन, सारे सेल्स में सारे जीन्स की जरूरत होती नहीं है। जितना डीएनए, जितना जीन्स का जरूरत है उतना ही एक्सप्रेस करने से इनफ है, मतलब उतने से ही प्रोटीन बनाने से इनफ है। तो सारा डीएनए खोलने का कोई मतलब होता नहीं है। इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। क्योंकि सोचिए डीएनए का सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से तेरा जीन निकलेगा, ये खुद बाहर नहीं आ सकता, इससे एक मैसेंजर आरएनए बना देगा कि कॉपी कर देगा सीक्वेंस को, भाई ये सीक्वेंस है, राइट और रॉन्ग? सोच, एक इतना जाड़ा किताब है, उसमें से एक पेज तेरे को पढ़ना है, पूरा किताब लेके जाएगा कि एक पेज जेरॉक्स कर लेगा, एक पेज जेरॉक्स कर लिया, वही है ये, ठीक है? लेकिन ये मैसेंजर आरएनए में बनता है। इसका रीजन है क्योंकि अगर सर मैसेंजर आरएनए बनाने का क्या जरूरत है? मैसेंजर नाम है क्योंकि मैसेज लेके जा रहा है, इसीलिए मैसेंजर, जिसे फेसबुक मैसेंजर मैसेज करता है ना, टिंग करके आ गया किसी लड़के का मैसेज, बस दिल में लड्डू फूटा, वो वाला मैसेंजर। फिर मैसेज करता है कि नहीं, दिल की बातें बोला जाता है कि नहीं? वैसे डीएनए का दिल का बात यानी सीक्वेंस मैसेंजर में कॉपी हो जाता है, जैसे कि एक जीरोक्स हो गया। और वो क्या होएगा, न्यूक्लियस, ये डीएनए टू मैसेंजर आरएनए बनेगा न्यूक्लियस के अंदर। जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए टू मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसको बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होगी। विदाउट प्रोटीन कुछ फंक्शन नहीं होता है सेल के अंदर। ये सब प्रोटीन्स वगैरह ये न्यूक्लियोलस में कैद रहता है। यहां पे एक डेंस स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस इज इवन डेंसर देन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? वैसे न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रहेगा, क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म से भी, न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस हो रहा है, आई मीन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म से भी ज्यादा डेंसिटी घट गया, न्यूक्लियोप्लाज्म से भी ज्यादा डेंस होता है न्यूक्लियोलस। क्या रहता है न्यूक्लियस के लस के अंदर? सर न्यूक्लियोलस से बहुत कुछ बनता है। न्यूक्लियोलस से बनता है डीएनए टू मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होता है, वो वाले एंजाइम्स, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जिस एंजाइम्स की जरूरत है वो बनाता है। फिर न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स भी बनता है, राइबोसोम्स बन के बाहर निकल के आता है। फुल्ली नहीं बनता है, राइबोसोम्स के कुछ सीक्वेंसेस बनते हैं। थोड़ा पॉज कर तो जी। तो डीएनए टू मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट होने के लिए जो जो प्रोटीन की जरूरत है वो इस न्यूक्लियोलस में रहता है। इट इज अ डेंस मटेरियल। और क्या रहता है इसमें? बहुत सारा आरएनए भरा हुआ रहता है। क्या रहता है भरा हुआ? इसमें बहुत सारा आरएनए भरा हुआ रहता है और प्रोटीन्स भी रहता है। एक्चुअली यहां से राइबोसोम बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
कुछ कुछ पोर्शंस बनता है। सर राइबोसोम का फंक्शन तो साइटोप्लाज्म में है, और एक चीज बताओ सर, आप मेरे को सीरियसली बताओ, इसके अंदर मैसेंजर आरएनए बनेगा तो वो साइटोप्लाज्म में बाहर कैसे आएगा? मैसेंजर आरएनए तो इधर बन रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और इस प्रोटीन की जरूरत जरूर साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस के अंदर है नहीं। आएगा कैसे बाहर? मैसेंजर आरएनए बाहर आता है न्यूक्लियर पोर्ट्स से, ऐसे छोटे छोटे पोर्ट्स रहते हैं। ये है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप मतलब मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। डू यू नो मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज व्हाट? डबल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन रहता है, ऐसे दो मेम्ब्रेन रहता है, डबल मेम्ब्रेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू यू? एक के पास कुछ भी नहीं है, एक के पास डबल मेम्ब्रेन है। क्या इंसाफ है? प्रोकैरियोट के पास कुछ भी नहीं है, यूकैरियोट के पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। और इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे पोर्स होते हैं, 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 ऐसे पोर्स होते हैं। और ये छोटा छोटा पोर जो है, इस पोर्स से मैसेंजर आरएनए निकल के बाहर आ गया। सही हुआ? मैसेंजर आरएनए क्या हुआ? निकल के बाहर आ गया। जैसे बनता है बन के निकल के बाहर आ जाता है, जैसे बनता है बन के निकल के बाहर आ जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही मैसेंजर आरएनए निकल के से बाहर आ गया, थोड़ा सेल को एक्सटेंड कर देता हूं। जैसे ही मैसेंजर आरएनए निकल के बाहर आ गया, राइबोसोम्स इसको ऐसे पकड़ लेता है। कैसे पकड़ लेता है? ऐसे, बहुत सारे राइबोसोम्स। इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर। ये पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर से फिर प्रोटीन बनता है, और इसका डिटेल्स क्या है क्लास हायर क्लासेस में। लेकिन इतना सीख पाया? अगर कोई पूछ देगा तेरे को, अच्छा बता तो न्यूक्लियर पोर होता क्यों है, क्या काम है न्यूक्लियर पोर का, क्या बोलेगा? मैसेंजर आरएनए बाहर निकल के आता है, और यहाँ पे जो राइबोसोम के लिए जो प्रोटीन आरएनए वगैरह स्टोर किया हुआ है वो भी बाहर निकल के आता है। तो न्यूक्लियर पोर है क्यों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्यों है भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खोल के फेंक दो, ऐसे ही बाहर निकल के आएगा? नहीं, तब प्रॉब्लम है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्रोटेक्टेड नहीं होगा, फिर तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बन जाता है। राइट? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत तो है डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए और हायर फंक्शनिंग दिखाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलके प्रोकैरियोटिक जैसा इनएफिशिएंट सेल बनता है। सेल के एफिशिएंसी के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत तो है, क्योंकि डीएनए को प्रोटेक्ट करना, डीएनए इतना इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझ में आया डीएनए कितना इंपॉर्टेंट चीज है? सारे जीन्स वहां पे कोडेड है, आई मीन स्टोर्ड है, राइट और रॉन्ग, प्रिजर्व्ड है, कंजर्व्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड यहां से निकल के आता है क्या? मैसेंजर आरएनए। क्या निकल के आता है? मैसेंजर आरएनए। तो ऐसे मैसेंजर आरएनए निकल के आता है, मैसेंजर आरएनए निकल के आता है, ऐसे मैसेंजर आरएनए निकल के आता है, मैसेंजर आरएनए निकल के आता है। ये मैसेंजर आरएनए एक्चुअली एक डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस लेके आया है। यस और नो, ट्रू और फॉल्स? ये मैसेंजर आरएनए डीएनए का क्या लेके आया है? स्पेसिफिक सीक्वेंस लेके आया है। तो जब ये डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस लेके आया है, तो वो सीक्वेंस राइबोसोम द्वारा क्या हो जाएगा? पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बन के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस अंडरस्टूड? न्यूक्लियस समझ में आया कि नहीं आया? अब तू खुद बता, why is nucleus called the brain of the cell? Obviously, because nucleus controls that what kind of gene should be converted into messenger RNA and what kind of protein should be made. और जिस डीएनए के जीन को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए बना के बाहर भेजेगा, वही मैसेंजर आरएनए बाहर आके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन में बदलेगा। जो टाइप ऑफ प्रोटीन साइटोप्लाज्म में रहेगा, सेल उसी टाइप ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा। वही तो इतना देर तक पढ़े। तो सेल को ब्रेन ऑफ द सॉरी न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलेगा, तो क्या बोलेगा? आया बात समझ में? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है क्यों? इज दिस क्लियर और इट इज नॉट क्लियर? क्लियरली बता। आर यू श्योर? अभी इधर क्लियर बता रहा है, फिर जाके बोलेगा नहीं समझ में आ रहा केमिस्ट्री के अलावा कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया? तो बता समझ में आया कि नहीं आया? The nucleus controls cell metabolism and other activities of the cell. Hence, it is also called the master or director or brain of the cell. Chromatin part of the nucleus possesses all the genetic information that is required for the growth and development of the organism with its reproduction, metabolism and behavior. Nucleus plays a central role in
cellular reproduction. Obviously, when cell divides, the nucleus also should divide and go. Right or wrong? एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनेगा तो दो न्यूक्लियस भी बनना चाहिए और पूरा डीएनए कॉपी होके जब दो सेल बनेगा डीएनए भी इक्वल इक्वल अमाउंट में जाना चाहिए। तो ये आधा आधा करके भेजेगा कि इसका कॉपी बना के एक में कॉपी और एक में पुराना वाला ही भेजेगा। राइट और रॉन्ग? एक बुक है, उस बुक को पूरा एक नोट का कॉपी दिया है मैंने तुम लोगों को, 10 पेज है, उसको फाड़ के पढ़ोगे कि जेरोक्स करके पढ़ोगे? जेरोक्स करके। ठीक उसी तरह इसका कॉपी बनता है। डीएनए को कॉपी करने का मतलब है डीएनए को रेप्लिकेट कराना, रेप्लिकेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है या होता है सेल डिवीजन के वक्त। यस और नो? सर सेल डिवीजन के वक्त तो क्रोमोसोम बन जाता है, लेकिन वैसे ही डिवीजन होता है, आई मीन रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के वक्त ऐसा काम है। Along with controlling the cell environment, nucleus also directs the chemical activities of the cell. Obviously, what type of enzyme, the proteins also acts as enzyme. What type of enzyme is coming out, that type of chemical reaction will occur, because enzymes are the one which makes the chemical reaction happen. The activities of the cell that determines the development and future form of the cell. कैसा सेल होगा? क्या वो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल होगा? क्या वो सेल पैरेन्काइमा होगा? क्या वो सेल स्क्लेरेन्काइमा होगा? क्या वो सेल कोलेन्काइमा होगा? क्या वो सेल प्लांट सेल होगा? क्या वो सेल ब्लड से आरबीसी बनेगा या डब्ल्यूबीसी बनेगा या प्लेटलेट बनेगा? क्या टाइप ऑफ सेल बनेगा? ये डिपेंड करता है कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन्स निकल रहा है। नॉट ओनली दैट, ऐसे सेल्स मिलके क्या टाइप ऑफ कैरेक्टर कोड कराएगा, इस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बनता है। आया मजा पढ़ के कि नहीं आया? और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या सीख गए? हम लोग राइबोसोम्स के बारे में भी सीख गए। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? क्या है राइबोसोम का फंक्शन? प्रोटीन सिंथेसिस करना। गुड। राइबोसोम का फंक्शन है पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बना के प्रोटीन सिंथेसिस कराना। क्या तुम लोगों को पता है राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं? ठीक है, हमेशा याद रखना राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि यहां पे लगेगा तो पढ़ लेंगे। राइबोसोम्स के ऐसे 2 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, कितने सब यूनिट्स होते हैं? 2। एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। और जो मैसेंजर आरएनए निकलता है ना, उसमें से स्मॉल और लार्ज सब यूनिट ऐसे पकड़ के रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है। ये पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर है। स्मॉल सब यूनिट यूकारियोट में 40s का होता है। एस एक यूनिट है, वेदबर्ग यूनिट, मतलब कितना वो भारी है या बड़ा है। और ये 60s का होता है, टोटल मिला के 80s हो जाता है। सर 100s नहीं, इट इज नॉट एडिटिव, प्योरली एडिटिव नहीं होता है कभी वेदबर्ग यूनिट। आया समझ में? मतलब इसका वजन नहीं, एक कांस्टेंट नापा जाता है। वो 40s आता है, ये 60s निकलता है, और टोटल का निकालने से 80s निकलता है। ये है यूकारियोटिक राइबोसोम। यूकारियोट में राइबोसोम 80s होता है, और सेम प्रोकारियोट में भी राइबोसोम होता है, लेकिन स्मॉल सब यूनिट होता है तुम्हारा 30s, लार्ज सब यूनिट होता है 50s, टोटल होता है 70s। आई मीन 80s नहीं होके 70s होता है। तो हमेशा याद रखना व्हाट इज ये होता है प्रोकारियोटिक राइबोसोम। प्रोकारियोटिक राइबोसोम, तो हमेशा याद रखना प्रोकारियोटिक राइबोसोम 70s होता है और यूकारियोटिक राइबोसोम 80s होता है। यूकारियोटिक राइबोसोम थोड़ा बड़ा होता है, प्रोकारियोटिक राइबोसोम थोड़ा छोटा होता है। यानी कि सर प्रोकारियोट में भी वैसा सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है, डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए को ऐसे राइबोसोम्स घेर लेता है, फिर उसके बाद प्रोटीन बनता है। हाँ होता है, उसका ट्रांसलेशन उसमें होता है। प्रोकारियोट यूकारियोट का ट्रांसलेशन 80s राइबोसोम करता है, प्रोकारियोट का 70s राइबोसोम करता है। आया बात समझ में? इज दिस क्लियर टू यू? बोलो, दिमाग में घुसा है कि नहीं घुसा है? तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, जो भी गए, न्यूक्लियोप्लाज्म पूरा सीख गए, क्रोमेटिन के बारे में सीख गए, डीएनए के बारे में अच्छे से सीख गए। सीखा है कि नहीं सीखा है? कैरेक्टर कैसे कोड होता है, नहीं होता है, पूरा अच्छे से सीख गए। एकदम अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात है, कोई टेंशन की बात है? पूरा समझ में आया कि नहीं आया? आर यू श्योर? तो ये है न्यूक्लियस और राइबोसोम। और सर क्या पढ़ाओगे? और पढ़ाऊंगा गोल्गी apparatus। और सर क्या पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ाऊंगा लाइसोसोम्स, बस और खत्म हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, राइट और रॉन्ग?
और एक दिन लगेगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो वो एक दिन कौन सा दिन है सर? वो एक दिन है, एक दिन सुबह आके देखो कितना मजा आता है। कर लिया बस। क्यों? इंग्लिश ट्यूशन यहाँ पे सर ने तो मेरे को कुछ नहीं बताया। कितने बजे से है? 10 बजे। अरे सर का 10 बजे उठने दे, 7 बजे से ट्यूशन। ओह सर। एक दिन सुबह आके देख कितना मजा आता है, जिंदगी झंड हो जाती है। अरे ये भी वीडियो करेगा तू?